ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾಡಿದಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ಕೇಳುವ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಳುವ ರಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇಳುವ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಚನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಿವ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಇಂದಿನದ ವೇದ ಪಾರಾಯಣಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ರಿಂದ 32 ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 31 to 32. ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ರಿಂದ 32 ವಚನವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡುವರಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ. I will read in English. John chapter 8 verses from 31 to 32. It is written like this. So Jesus said to those who believed in him, if you obey my teaching, you are really my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. May God bless the reading and listening of these holy words. Amen. हिंदी में इस रीति से ये वचन कहता है. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31 से लेके 32 वचन. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर की स्तुति हो. यस, शायद आप लोग शॉक होंगे कि आज डैनियल किस रीति से वचन को बांट रहा है. तो ऑन बिहाफ ऑफ रेवरेंड डॉक्टर सुरेंद्र सैमुअल जो है, मैं आज इस सर्विस को कर रहा हूं आपके लिए भी. तो मैं सुरेंद्र अय्या का धन्यवाद करना चाहता हूं. ये मौका जो है, मैं हमेशा वचन को बांटने के लिए जो है एक मौका मैं कहता हूं, इसलिए उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये मौका मुझे दिया है वचनों के जरिए मैं आपसे बात कर सकूं. किसी कारणवश जो है वो आज के सर्विस को नहीं कर पा रहे हैं, कारण हम सभी लोग जानते हैं. आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा और अय्या का भी, और उसी के साथ जो है आज वचन पढ़ा है हमने, उस वचन पर जो है हम लोग मनन करेंगे. ಇಂದಿನದ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. परमेश्वर के आज के इस वचन को सुनने से पहले हम अपने आप को प्रार्थना में तैयार करेंगे. इतना अद्भुत समय परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके समीप में आके अपने स्वरों को झुकाएंगे. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದೊಳು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬಂದೆವು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅರಸಿ ಬಂದೆವು. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದಳು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬಂದೆವು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅರಸಿ ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು. प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, कल के दिन 15 अगस्त जो है, हमने 74th इंडिपेंडेंस डे, 74वां स्वतंत्र दिवस जो है हमने मनाया है। बहुत सारे लोगों ने लाल किले का भाषण सुना होगा, मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत, ये वगैरह सारे चीजों को हमने सुना है। और बहुत सारे लोग घर में बैठकर देशभक्ति का गाना सुना होगा। वेरी गुड। अच्छा है कि हम उन हीरोज को, नेशनल हीरोज जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे ही नहीं, और मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सारे बोलते ना, धर्म को ना देखते हुए इन्होंने उस भारत के जो आजादी के लिए कार्य को किया है। बहुत सारे लोग हैं, खान अब्दुल गफर खान और मौलाना जी, उसी रीति से केटी पॉल, जॉर्ज, उस रीति से बहुत सारे लोगों ने जो है इस फ्रीडम स्ट्रगल में अपने योगदान को दिया है, और आज हम लोग आजाद भारत में रह पा रहे हैं। 74th इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल वी आर फ्री, वी हैव द फ्रीडम एंड वी सेलिब्रेटेड द 74th इंडिपेंडेंस डे जो कल के दिन हमने मनाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे ऐसे सारे हीरोज के लिए। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, प्रार्थना में जो है आज के डिफेंस के लोगों को भी जो है हमें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको भी जो है हम लोग एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भी ऑफिसर्स है, सबको जो है याद करना जरूरी है, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी को लगाते हैं हमारी जान की सुरक्षा के लिए। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वैसे ही जो है कल हमने फ्रीडम के बारे में, आजादी के बारे में बहुत सुना होगा, जाना होगा। आज जो है वो तो पॉलिटिकल या एक फिजिकल या देश का जो है आजादी, बाहरी रूप से जो है हम लोग आजाद देश में है और हम लोग आजाद नागरिक है। लेकिन आज मेरा वचन है, मेरा एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आर यू रियली फ्री इनसाइड? क्या आप अंदर से वो आजादी को महसूस कर रहे हैं? जो बाहर से आजादी का मतलब क्या है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल फ्रीडम, पूरा आजादी। आज हमारे भारत में या हमारे ऊपर कोई भी जो है दबाव नहीं है, या कोई राजा राज्य नहीं कर रहा है। डेमोक्रेटिक नेशन है हम लोग, फ्री नेशन है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या वो फ्रीनेस, क्या वो आजादी, क्या वो फ्रीडम आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं? आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट समथिंग स्पिरिचुअल फ्रीडम, आत्मिक आजादी, जो अंदर से एक आजादी फील होता है, एक फ्रीनेस फील होता है। फ्रीडम विद इन योरसेल्फ। आजादी का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? फ्रीडम का सिंपल वे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कोई दबाव नहीं है, फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली एंजॉयिंग, पूरा लाइफ हम लोग बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं अंदर से भी। बाहर से तो फ्रीडम है, लेकिन अंदर से भी हम लोग पूर्ण रीति से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड। क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो 100% ये कह सकता है कि हाँ या मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं, मैं अपने जिंदगी से बहुत खुश हूं? 99.99% लोग जो है
मेरे बात से वाकिफ होंगे कि ऐसा कोई नहीं होगा। शायद 1% है, वो बहुत लकी लोग हैं जो चिंता नहीं कर रहे हैं। आज हम अंदर से वो आजादी जो है सही रीति से फील नहीं कर पा रहे। आज अंदर ही हमको कोई बोझ खाए जा रहा है, कोई तकलीफ, कोई परेशानी खाए जा रहा है। बट द वरी, जो चिंता हमारे अंदर है, इट इज नॉट अलाउइंग अस टू लिव लाइफ फ्रीली। जो चिंता हमारे अंदर, जो परेशानी, समस्या हमारे अंदर चल रही है, वो हमें जीवन को आजादी से, संपूर्णता से, पूरे बोलते ना मजे से जो है जीवन जीने को नहीं दे रहा है। Why this worry? क्यों हमारे जीवन में ये परेशानी है? उस कारण को आज हम लोग जानेंगे और धीरे धीरे जो है हम लोग सच्ची आजादी के और जो है हम लोग बढ़ने वाले हैं। इस चिंता के घड़ी से, इस चिंता टेंशन के समय से जो है हम लोग सच्ची आजादी के और हम लोग बढ़ने वाले हैं, जो भीतर से हमें परमेश्वर देता है। इसलिए आज का जो मैसेज का टाइटल है टुवर्ड्स फ्रीडम, आजादी की ओर जो है हमारा जर्नी यहां से शुरू होता है। क्योंकि पहले हमें जानना है हम क्यों आजाद नहीं है, क्यों अंदर से हमें वो आजादी, वो मजा, वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है। क्योंकि अंदर से चिंता हमें खाए जा रहा है। आपको मालूम है क्यों ये चिंता है? वाई एवरीवन इज वरीड। आज हर एक के जीवन में, वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का लड़की, कोई भी उम्र का हो, कोई भी एज का हो, उनके जीवन में कोई ना कोई चिंता, परेशानी को वो देख रहे हैं। आपको पता है क्यों? वाई दिस वरी? क्यों? बिकॉज एवरीवन इज लाइंग, देयर इज नो ट्रूथ। समझ में आ रहा है आपको बात? हर एक इंसान झूठ का शिकार हो गया है। कहीं ना कहीं झूठ, कहीं ना कहीं गलत बातें वो कर रहा है। सच्चाई, सत्य को हमने खो दिया है पूर्ण रीति से। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? सत्य यानी ट्रूथ, यानी सच्चाई, इसका मतलब क्या है? बिब्लिकली अगर हम लोग जानेंगे व्हाट इज ट्रूथ, सच्चाई का मतलब ये नहीं है खाली गलत के ऑपोजिट है ना। सच्चाई मतलब सच बोल दिया, झूठ ने, नो 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 नो। सत्य, ट्रूथ का मतलब क्या है, उसका सिनोनिम्स अच्छे से समझना जरूरी है। ट्रूथ मीन्स हॉनेस्टी, ट्रूथ मीन्स इंटीग्रिटी, ट्रूथ मीन्स प्योरिटी, ट्रूथ मीन्स ओपननेस। सच्चाई, सत्य का मतलब क्या है? एक खुलापन, खुले से हम लोग जीवन जी सकते हैं जब सत्य हमारे जीवन में। सत्य का मतलब है ईमानदारी, सत्य का मतलब है एकाग्रता, सत्य का मतलब है पवित्रता। क्योंकि जब मैं अगर आपको ट्रूथ को डिफाइन करने बोलूं तो आप कैसे करेंगे? मेरा एक डेफिनेशन है। ट्रूथ का मतलब क्या है? एक व्हाइट पेपर ले लो, देयर इज नो सिंगल डॉट, यानी उसके ऊपर कोई भी धब्बा नहीं है, जस्ट प्योर फुल व्हाइट है। दैट इज द ट्रूथ। क्या आपका जिंदगी ऐसा है? नहीं, कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है वो झूठ का शिकार हो चुका है। एक मेरा चर्च के मेंबर से जो है मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छा रीति से फोन में बहुत देर बात हुआ। उसने एक बात बहुत अच्छा कहा जो दिल को लग गया। भैया, हर जगह पर, हर कॉर्पोरेट सेक्टर में बोलो, स्कूल में, कॉलेज में, सब बिजनेस हो चुका है, सब कुछ बिगड़ चुका है। सच्चाई किधर है? वेयर इज द ट्रूथ? क्यों पता है उसने ये बोला? क्योंकि जो ईमानदार है, जो अच्छा है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, वो बहुत नीचे के स्थान पर है। लेकिन जो बेईमान है, जो चीटिंग कर रहा है, जो धोखा कर रहा है, जो बटरिंग कर रहा है, फ्लैटरी, किसी का बोलता ना तलवे चाट रहा है, वो चमचागिरी कर रहा है, वो बंदा प्रमोशन लेकर आगे जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। दिस इज द ट्रूथ। एक्चुअली ये सच्चाई है हमारे समाज में। उसने एक सवाल बहुत अच्छा किया, वेयर इज द ट्रूथ? सच्चाई कहां है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ने गलत कार्य को किया है, कहीं ना कहीं हम सभी ने अपने जिंदगी में झूठ को बोला है। थोड़ा सा एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा कैसे हम लोग ट्रूथ के ऑपोजिट हो चुके हैं, समाज में भी और हम इंडिविजुअली अंदर से भी। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं, पिक्चरों में आपने देखा होगा, सीरियल्स में आपने देखा होगा कि औरतों को या लेडीज को जो है कभी भी उम्र नहीं पूछा करते, एज नहीं पूछा करते, पूछेगा तो भी गलत बताएंगे। वाह, स्टार्ट हो गया झूठ का। आदमियों को क्या नहीं पूछना है? ऑब्वियसली सैलरी, कितना पगार है, वो नहीं पूछना है। अगर पूछेंगे, बताएंगे तो भी बहुत लोग गलत बताएंगे, कम बताएंगे, या तो ज्यादा बढ़ोतरी करने के लिए बताएंगे। यहीं से झूठ का शुरुआत। भले ये मजाक, ऐसा लग रहा है कि ये मजाक की बात है, बट दिस इज द सीरियसनेस।
ये यहीं से जो है शुरू होता है। हर एज में हर एक बंदा झूठ का शिकार हो गया है। अब अगर ट्रूथ, ईमानदारी, सच्चाई, प्योरिटी है तो झूठ का मतलब क्या है? झूठ मतलब झूठ, गलत बातें, गंदी बातें, पाप की बातें, जो जो गलत आदतों में हम लोग पड़े हुए हैं। आज क्यों हम लोग झूठ बोल रहे हैं, क्यों हम लोग चिंतित है पता है? अलग अलग लोग अलग अलग परेशानी, अलग अलग जो है टेंशन में पड़े हुए हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। पता है क्या है, क्यों, कहां कहां हम लोग झूठ बोल रहे हैं? बहुत सारे शादीशुदा लोग जो है दूसरे के साथ रिश्ता बना के रखा है। खुद की पत्नी घर पे है लेकिन अपना रिश्ता दूसरे से बना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दिस इज द रियलिटी। आपको सुनकर थोड़ा शॉक हो सकता है लेकिन ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग, और उनको उसके प्रति झूठ बोलना ही पड़ता है क्योंकि समाज में अच्छा नाम चाहिए, है ना। यूथ्स या बहुत बड़े लोग भी बहुत गंदे गंदे एडिक्शंस में, गलत आदतों में, गंदे आदतों में जो है वो फंस चुके हैं। एडिक्शंस यानी हम सभी को मालूम है, फॉर सिंपल सा है सिगरेट, दारू का जो आदत है ना। हर एक लोग बोलते ना 80% वो लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। एंड दैट इज द रीजन फॉर वरी। वही जो है कारण है आपके जीवन में चिंता आने का। आप लोग टेंशन फ्री नहीं जी पा रहे हैं। बहुत सारे यूथ्स लोग, हम लोग हमेशा एडिक्शंस बोला बराबर यूथ के पास जाते, नो, बड़े लोग भी इस एडिक्शंस के शिकार है। बड़े बड़े लोग, चर्च के एल्डर्स, चर्च के कमिटी मेंबर्स, अच्छा पोस्ट चाहिए हम लोग को, अच्छा कमिटी मेंबर्स हम लोग को बनना है, फूल देने के टाइम हमको आना है, हमको फूल मिलना चाहिए, बहुत मजा आता है, बहुत इज्जत मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। वही चर्च होने के बाद किधर जाने का है? बाहर में। दिस इज द रियलिटी। और कोई दिख जाए, कभी कभी कोई जिसको शर्म बाकी है वो अपने आप को छुपा लेता है। कोई चर्च का लोग दिख गया, अरे नहीं वो चर्च का लोग है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा जमीर बाकी है। बट लेकिन उनको झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ की जिंदगी वो लोग जीने के आदी हो चुके हैं। यूथ्स, लस्ट, काम, वासना, गंदगी। लड़की साथ में है फिर भी दूसरे लड़की की इधर नजर रहेगा, बट ये बताएंगे नहीं कोई भी, क्योंकि झूठ के आदी हम लोग हो चुके हैं। टेम्पटेशंस, अलग अलग टेम्पटेशंस, पोर्नोग्राफी। आपको पता नहीं हमारे जवान, हमारे बच्चे मोबाइल में, इंटरनेट पे क्या क्या देखते हैं। झट से कोई माँ बाप आ जाता है तो वो विंडो ऐसे ऐसा करके जो है पढ़ाई का कुछ आ जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ गंदगी देखने का जो है वो शिकार हो रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। हम में से हर एक अपने जीवन में कुछ कुछ चीजों को छुपा रहे हैं। छुपाना मतलब ही है कि सत्य को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। छुपाना मतलब ही है हम लोग झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। आप गारंटी के साथ आप अपने आप को देखिए, आप अपने जीवन में क्या छुपा रहे हैं। आप पाएंगे कि मैं भी हूं। ये सब गंदगी एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग, व्हाइट कॉलर लोग, जिसका बहुत रिस्पेक्ट है समाज में, वो लोग भी जो है ऐसी झूठ की जिंदगी को जी रहे हैं, गंदगी में अपने आप को देख रहे हैं। और एक हिडन रियलिटी है जो बात को हम लोग छुपाते हैं हमेशा, ईगो एंड कंपटीशन आज की सच्चाई है। ईगो मतलब मालूम है, मेरा ही होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं यही होना चाहिए। है बहुत सारे लोग, 90% लोग ऐसे ही है, बड़े छोटे सब लोग, ईगो प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बताएगा नहीं कि मेरा ये इच्छा है, नहीं मैं चाहता हूं ऐसा। दूसरे लोग, अरे भाई 4 जन को पता चल रहा है तुझे ईगो प्रॉब्लम हो रहा है। उसी के साथ साथ कंपटीशन प्रॉब्लम है। कंपटीशन मतलब क्या मालूम है? पॉजिटिव कंपटीशन नहीं है, उसका 80% आया तो मैं भी 80 लेकर आऊंगा, ऐसा नहीं है। उसने गाड़ी लिया, बाइक लिया, मैं भी बाइक लूंगा। उसने कार लिया, मैं भी कार लूंगा। हम लोग कॉम्पिटिशन्स में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग ये सोचना भूल जाते हैं उसका सैलरी 1 लाख है और तेरा सैलरी 60,000 है। लेकिन समाज में बोलते ना, थोड़ा सा होशियारी करने के लिए, हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं थोड़ा सा पटीली करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, खरीद ले लेते हैं, और बाद में हमारा बजट हिल जाता है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आज बहुतों को है। क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन। जो जरूरत नहीं है वो चीजें हम लोग ले लेते हैं। उसको अलग चिंता है 1 लाख वाले को, तेरा 60,000 वाला जो है वो 1 लाख का जो शौक करने के चक्कर में तेरा चिंता दूसरा चालू हो गया। और हर एक लोग झूठ की जिंदगी जी रहे हैं, दूसरों को देखकर जी रहे हैं। लेकिन किसी को आप पूछो तूने क्यों लिया ये गाड़ी? उसने लिया इसलिए, अरे नहीं मैं बहुत दिन से सोच रहा था, मैंने ले लिया। बट ये सच्चाई नहीं है। 4 जन को मालूम है वो क्यों लिया है, सबको पता है क्या कंपटीशन चल रहा है इन लोग में।
लेकिन उसका बजट जो हिल जाता है उससे उसके जीवन में और टेंशन्स बढ़ जाता है। आज के दिन में, आज का फॉर एग्जांपल अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोरोना वायरस, आज जो है किसी को कोरोना होता है, कोई भी 95% लोग जो है कोई भी बताते नहीं है कि उनको कोरोना हुआ है। एक्चुअली में हमारे फैमिली मेंबर्स हो या हमको खुद को हो, कोई भी बता नहीं रहे। मेरे चर्च के लोग 2-3 लोगों को हुआ, लेकिन कभी भी पता ही नहीं चला। एकदम एंड मोमेंट में पता चलता है अरे यार इनको कोविड पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि ये समाज ने ऐसा बना दिया है। ये झूठ के आदी हो चुके हैं। छुपाओगे तो सेफ रहेगा, उजागर करोगे तो खतरे में पड़ोगे, क्योंकि पूरा सोसाइटी एक नेगेटिव तरीके से देखेगा, गलत नजर से देखेगा, बोलते ना दूर दूर हो जाएगा। कोरोना अछूत बीमारी नहीं है, या प्रिकॉशंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस। बोलते ना कोरोना को अपोज करो, पेशेंट को नहीं। उनको जो चाहिए आप दूर से उनका मदद करना जरूरी है, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है आज, है ना। दैट इज द रियलिटी। क्या मैं कहना चाहता हूं, इन सारे एग्जाम्पल्स में हम लोग जीवन जो है जी रहे हैं सत्य के ऑपोजिट, पूरा उल्टा जीवन जी रहे हैं। झूठ की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, छुपा छुपा कर जिंदगी जी रहे हैं, गलत रास्ते पर हम लोग जी रहे हैं, और इन रास्तों में जो है हमने सत्य को जो है खो दिया। हम दूसरों को झूठ बोल रहे हैं, हम खुद से भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते सब कुछ जानने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज ये है, खुशखबरी ये है कि हमारा बाइबल कहता है देयर इज अ वे टू बिकम फ्री। एक रास्ता यीशु मसीह देता है कि आप इन सारी चिंताओं से आजाद हो सकते हैं। बहुत बार वचन में लिखा है ना, डू नॉट वरी, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम विद यू। लेकिन ये वचन हमारे दिमाग में जाता नहीं है। अभी भी हम लोग चिंता करने की आदी हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, गलत चिंता हो, सही चिंता हो। यीशु मसीह कहता है चिंता मत करो, लेकिन फिर भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। आज एक्चुअली में मैं जब वचन पढ़ रहा था, मुझे ये बात समझ में आया क्यों हम लोग चिंता में पड़े हुए हैं, क्यों हम लोग अंदर से वो आजादी, वो फ्रीडम को जो है, जो सच्चा फ्रीडम है, वो हम लोग एहसास नहीं कर पा रहे हैं। बाइबल कहता है देयर इज अ वे टू बी फ्री। आप अंदर से निश्चिंत हो सकते हैं। जब अंदर आपका निश्चिंतता भावना आएगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन अचानक चेंज हो जाएगा। आपका जो कर्जे का जो बोझ है, अचानक जो है स्वर्ग से पैसा बरसेगा, आपका कर्जा मुक्त हो जाएंगे आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं वो सर्कमस्टेंस में, वो सिचुएशन में भी आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का एक सच है, परमेश्वर जिसको जितना देना चाहता है वो उतना ही देगा। उसी में जो है हम लोग को जीवन जीना सीखना चाहिए, वो हम लोग सीख जाएंगे अगर हम लोग चिंता से मुक्त हो जाएंगे। सिचुएशन चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा नजरिया, हमारा तरीका, हमारा बर्ताव जो बदलेगा, उसके कारण हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। एंड वी विल लिव फ्रीली। ये स्माइल आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में वो हंसी आएगा, हर एक चिंता से मुक्त। तो कौन होना चाहता है हर एक चिंता से मुक्त, टेंशन फ्री? आई होप कि हर एक इंसान होना चाहता है। देयर इज अ वे। क्या तरीका है? यीशु मसीह इस बाइबल में कहता है ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य, सच्चाई जो है आपको आजाद कर देगा। सत्य निಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ। सच्चाई, ट्रूथ। लेकिन यहां पर वचन में बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ट्रूथ विल मेक यू फ्री। सच्चाई आपको आजाद कर देगा, निश्चिंत कर देगा, हर एक चिंता से मुक्त कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको सच्चाई, सत्य क्या है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द ट्रूथ? टू बी फ्री, हमको निश्चिंत होने के लिए, हमको बोलते ना हर एक चीजों से मुक्त होने के लिए जो है हमको सच्चाई को जानना पड़ेगा। और सच्चाई को जानने के लिए यीशु मसीह कहता है आपको यीशु मसीह का शिष्य बनना पड़ेगा। और यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए जो है उसकी बातों को पालन करना पड़ेगा। और उसकी बातों को पालन करने का मतलब है कि उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। सो टू गेट द ट्रू फ्रीडम, सच्चा फ्रीडम जो अंदर से हम लोग महसूस कर सकते, विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर से ये आजादी, निश्चिंतता, हर एक टेंशन फ्री हम लोग जीवन जी सकते हैं। देयर आर 5 पॉइंट्स। हम लोग जैसे उल्टा पढ़ा है, उस वचन में लिखा है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, वचन में पॉइंट टू पॉइंट लिखा है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं।
5 पॉइंट जो है हम लोग ऐसे ऑर्डर में जाएंगे, सही रीति से असेंडिंग ऑर्डर में। क्या लिखा है? टू फाइंड, बोलते ना, एक मुक्ति, एक चिंता फ्री लाइफ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बिलीव इन जीसस। यहां पर वचन कहता है, सो जीसस सेड टू दोज हु बिलीव्ड इन हिम, जिसने विश्वास किया उसको ये यीशु मसीह कह रहा है, अविश्वासियों को नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बिलीव। इसका मतलब है आप सभी को बोल रहे हो, है ना, क्योंकि आप सभी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। एम आई राइट? हम लोग सब क्रिश्चियंस है, भले नाम के क्रिश्चियंस है, लेकिन क्रिश्चियंस है। हम लोग यीशु मसीह पर जानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राइट? लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है फर्स्ट पॉइंट, टू गेट द फ्रीडम विद इन, अंदर से मुक्ति पाने के लिए, चिंता फ्री होने के लिए क्या है? फर्स्ट थिंग इज बिलीव इन जीसस। यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। इसका मतलब है आपने सुना है, आपने जाना है यीशु मसीह को और आप विश्वास कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, बिलीव इन जीसस, और विश्वासियों को लिए कहता है। सेकेंड इज, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप जो है ओबे जीसस टीचिंग, यीशु मसीह का जो बातें हैं उसका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग जानते बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ जानते हैं हम लोग, लेकिन उसका पालन 50% भी शायद नहीं हो रहा है। दैट इज द रीजन हम लोग चिंतित क्यों है। सिर्फ पहले ही पोर्शन में हम लोग बैठ गए, विश्वास करके बैठ गए। या विश्वास करोगे आप क्रिश्चियन हो, बट चिंता फ्री लाइफ जीने के लिए यह जरूरी है। विश्वास करने के बाद जो है यीशु मसीह का सिखावट को मानना जरूरी है, और यीशु मसीह का सिखावट को मानने के लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। हम में से हमारे चर्च में इतने लोग हैं जो शायद ही रोज बाइबल पढ़ते हैं। ये कोरोना मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है, जो हर घर पे बाइबल खुल रहा है, हर घर पे प्रार्थना हो रहा है, ऑलमोस्ट हर घर पे। टू ओबे जीसस टीचिंग, यीशु मसीह की शिक्षाओं को पालन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको वचन को जानना पड़ेगा। यू हैव टू गेट इनटू द बाइबल। बाइबल के अंदर आपको घुसना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन में, तभी आप जो है उन बातों का पालन कर सकते हैं। देखिए, जानना एक अलग चीज है, मानना एक अलग चीज है। यीशु मसीह को हम लोग देखे हैं, हम लोग जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिश्चियन लाइफ चलते जाएगा। उसका बातों को जब हम लोग मानते हैं, तब धीरे धीरे यीशु मसीह को हम लोग मानना शुरू करते हैं। एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग? जब बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके बाद उसकी बातों का पालन करते हैं जो वचन में लिखा है, और जरूरी है प्रैक्टिकली फॉलो करना है, ऊपर से नहीं, हवे से नहीं। और तीसरा जो है, बिकम डिसाइपल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का वचन कह रहा है। विश्वास करो, उसकी बातों को पालन करो, और उसके शिष्य बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। शिष्य बनने का अर्थ क्या है? ये देखो, विश्वास हम लोग ने किया, वेरी गुड, हम लोग ने विश्वास किया। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है ओबे जीसस टीचिंग, यीशु मसीह के बातों को जो है हम पालन करना सीख गए। ये यीशु मसीह है। विश्वास किया, यीशु मसीह को पालन किया, उसके बाद हम लोग शिष्य बनना है। धीरे धीरे जो है हम लोग यीशु मसीह के नजदीक जाना जरूरी है। उसी वक्त हम लोग चिंता से मुक्त होंगे। पहले विश्वास, फिर यीशु मसीह की बातों को माना, बाइबल को पढ़ के, उसमें ही लिखा है क्या बात है। उसके बाद शिष्य बनना बहुत जरूरी है। हमको मालूम है बहुत हजारों लोग यीशु मसीह को फॉलो करते थे, लेकिन सिर्फ 12 चेले थे, और उसमें से भी 3 चेलों को यीशु मसीह प्राइवेट मीटिंग में लेकर जाता था। 12 चर्च के, पूरे चर्च के मेंबर्स, 12 कमिटी मेंबर्स, फिर उसमें से भी 3 स्पेशल मेंबर्स। ऐसा यीशु मसीह का मिनिस्ट्री हम लोग देखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बिकम डिसाइपल्स ऑफ जीसस। यीशु मसीह का शिष्य बनना होगा। शिष्य बनने का अर्थ ही क्या है? शिष्य वो है जो गुरु की तरह बनने की कोशिश करता है, वही सच्चा शिष्य है। और गुरु से भी एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है, वो सच्चा शिष्य है। तो वी नीड टू बिकम डिसाइपल्स। हम यीशु मसीह का शिष्य, उसके चेले बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही यीशु मसीह का वचन कहता है, व्हेन यू बिकम डिसाइपल्स देन यू विल नो द ट्रूथ। तब आपको सत्य पता चलेगा। आपको सच्चाई अभी तक पता ही नहीं है, आपको सत्य क्या है ये पता ही नहीं है। हम लोग सिर्फ यीशु मसीह का नाम सुनकर विश्वास कर रहे हैं, ऐसे ही फॉर्मेलिटी, आ रहे हैं चर्च में, प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आइया जो बोला सुन के निकल जा रहे हैं, बट वी हैव नॉट बिकम, बोलते ना, जीसस, यीशु मसीह को अभी तक पूरा जाना नहीं है हम लोग ने। स्टेप बाय स्टेप जानना जरूरी है। डिसाइपल्स होने के बाद
यू विल नो द ट्रूथ, सच्चाई आपको पता चलेगा। आपको मालूम है सच्चाई क्या है? जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ अध्याय 6ನೇ ವಚನ। क्या लिखा है उसमें? ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು, ನಾನೇ ಸತ್ಯವು, ನಾನೇ ಜೀವವು। ಐ ಆಮ್ ದ ವೇ, ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈಫ್। ಐ ಆಮ್ ದ ट्रूथ। हु इज द ट्रूथ? जीसस इज द ट्रूथ। ये स्टेप में आके हम लोग को वो सच्चाई पता चलता है, और सच्चाई और कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। ट्रूथ इज पर्सोनिफाइड इन जीसस क्राइस्ट। सच्चाई दिखता कैसा है? कोई बोलेगा तो क्या बोलना है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही वो सच्चाई है जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो आपको आजाद करेगा, हर एक चिंता से मुक्त करेगा। लेकिन उस सच्चाई को जानने, हमको लग रहा है कि हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं। नहीं, आप कुछ नहीं जानते। आपने सिर्फ सुन रखा है, फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग क्रिश्चियन बने हैं। देखो इतना स्टेप्स है, देन यू विल नो द ट्रूथ। सच में यीशु मसीह को जानना है तो 4th स्टेप में आने के बाद पहले विश्वास करना है। हम सभी लोग विश्वास करते हैं, अभी तक पहले ही स्टेप में, बहुत दूर है यीशु मसीह से। 2nd में लिखा है उसकी बातों का पालन करना। देखो पालन करना 2nd में ही है। हमको यही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आज तक, है ना। अब 3रा स्टेप है शिष्य बनना, उसके और नजदीक आना। 4था क्या है? देन यू विल नो द ट्रूथ। शिष्य बनने के बाद, अभी देखो ट्रूथ को जानने के बाद आप आजाद होते हैं। मतलब यीशु मसीह को जानने के बाद, उसकी संपूर्णता से, फुलनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हेन यू नो, देन यू विल बी फ्री। कल देश की आजादी के बारे में जाना, आज आपकी आजादी आपको परमेश्वर देना चाहता है। अंदर से कोई भी चिंता हमारे जीवन में होने दो, कोई भी चिंता, लेकिन सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह है। और जब ये सच्चाई को हम लोग जानते हैं, मानते हैं और उसको और जानने की कोशिश कर, देखिए यीशु मसीह को जानने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग ने कुछ पढ़ लिया यीशु मसीह को, हाँ जीसस मालूम है हमको कौन मेरे लिए मरा, मेरे लिए जीवित हुआ, सब इतना ही नहीं है यीशु मसीह। मैं खुद बैचलर ऑफ डिविनिटी पढ़ा हूं 4 साल, अभी मैं 5-6 साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूं और अभी भी मैं यीशु मसीह को जान रहा हूं। मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है, ही इज सो, बोलते ना, सो वाइड, सो बिग, इतना बड़ा है कि हम लोग उसको जान ही नहीं सकते हैं। आवर लाइफ, इट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस टू नो जीसस। यीशु मसीह को जानने के लिए जो है हर समय वी हैव टू स्ट्राइव। हर समय जानते रहो, जितना जानोगे उतना कम है, और जितना जानोगे उतना वो सच्चाई के करीब होगे, उतना यीशु मसीह के करीब होगे, और जितना आप करीब होगे दैट विल सेट यू फ्री। ये आपको आजादी देगा। एंड व्हाट इज द फर्स्ट फ्रीडम जीसस गिव्स? दैट इज द फ्रीडम फ्रॉम योर सिन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आज पाप से पश्चाताप करो, रिपेंट करो। जब आप यीशु मसीह को सच्चाई से जानोगे ना, ये बोलने का ही जरूरत नहीं है, आप खुद से पश्चाताप करोगे, आप खुद से पाप मुक्त हो जाओगे, आप पाप को कभी हाथ ही नहीं लगाओगे। ये अगर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 8 उसके फर्स्ट वर्सेस में, यीशु मसीह ने एक व्यभिचारी स्त्री को आजादी दे दिया, पाप से छुटकारा दे दिया। सब लोग लेकर आए उसको मारने के लिए, पत्थर से मारेंगे यीशु मसीह के सामने। इसने व्यभिचार किया, यीशु मसीह क्या करना है? क्या बोलता है यीशु मसीह? जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। धीरे धीरे सब कल्टी हो रहा है भाई, सब लोग निकल जा रहा है सब लोग। और वहां पर बचा कौन? सिर्फ वो स्त्री और यीशु मसीह। और जब उस स्त्री को पूछता है यीशु मसीह, सभी लोग चले गए, कोई दोष नहीं लगा रहा है, कोई नहीं मार रहा है, मैं भी तुझको दोष नहीं लगाऊंगा, जा और आगे से पाप मत कर। जब आप, दिस इज द एनकाउंटर विद जीसस। वो यीशु मसीह को, उसके बाद उसका स्टोरी नहीं लिखा है, बट दिस इज द ट्रूथ। ये रियलिटी है कि उसने अपना जिंदगी को जो है सफल कर दिया, अच्छा कर दिया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह के वो करीब आ गए। वाओ, दिस एनकाउंटर इज नीडेड। इसके बाद पाप का पश्चाताप करो, रिपेंट करो, ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप हम लोग पाप से, बिकॉज फर्स्ट जीसस गिव्स द फ्रीडम फ्रॉम सिन, क्योंकि वो क्रूस पर जो मरा हमारे लिए, वो पाप से मुक्ति देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, दैट इज अवेलेबल। वो आपके लिए जो है दे के रखा है, उसको सिर्फ अपनाना है। कैसे अपनाना? ये स्टेप के साथ। जब आप सच्चाई को जानोगे, यीशु मसीह को उस स्टेप में जाके आप जानोगे ना,
उस वक्त आप हर पाप से, मैं जब एग्जाम्पल दे रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, हर एक गंदी बात को मैंने बताया, हर एक गलत आदतों को मैंने बताया। चिंता जब कर रहे हैं, झूठ हम लोग बोल रहे हैं, झूठ की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, क्या क्या आदतें हैं, गंदी आदतें, बुरी लतें हैं हमारे जीवनों में, क्या क्या गंदी बातें हम लोग देख रहे हैं, ये सब चीजें जो है परमेश्वर का वचन कहता है फर्स्ट थिंग ही गिव्स द फ्रीडम फ्रॉम सिन, पाप से वो छुटकारा देता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट जीसस गिव्स। जब आप यीशु मसीह को इस करीब आकर आप जानते हैं ना ये सच्चाई को, आप पाप मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद आप पाप करोगे ही नहीं। इसका मतलब समझ जाओ कि हम लोग कौन से स्टेप में चल रहे हैं। इट इज वेरी इजी टू लिव वरी, बोलते ना, चिंता, बिना चिंता का रहना, लेकिन पहले पाप से मुक्ति पाना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग जीसस गिव्स। और सिर्फ पाप, ये हमारा टॉपिक नहीं है पाप का, और यीशु मसीह सिर्फ पाप से मुक्ति नहीं देता है। ट्रूथ विल सेट यू फ्री, नॉट ओनली फ्रॉम सिन, आफ्टर सिन एज वेल। आफ्टर सिन एवरी वरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, हर एक चिंता से मुक्त कर देगा। आपका सिचुएशन नहीं बदलेगा, लेकिन आपका नजरिया बदल जाएगा। आप उस प्रॉब्लम में भी आप खुशी से जी सकते हो अपने जीवन को। कर्जा है, लाख रुपए का कर्जा है, कैसे दे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आपका लाइफ बहुत अच्छा चलेगा, आपका घर में सब कुछ रहेगा। लेकिन उसके लिए इस यीशु मसीह को इस स्टेप में आके जानना जरूरी है। आज आपके सामने मैं एक सवाल छोड़कर जाता हूं, कितना, कैसा जिंदगी हम लोग जी रहे हैं और कितना हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं। कल देश की आजादी के बारे में जाना, आज हम खुद आजाद नहीं है। देयर इज नो स्पिरिचुअल फ्रीडम। जैसा मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं आप भी आत्मनिर्भर बनो। आपकी आजादी आपके हाथों में है और यीशु मसीह ने आपको तोहफे में दिया है। जस्ट आपको वो स्टेप लेकर जाना है, सिर्फ आपको चलते जाना है। मैं एक एग्जांपल देके जो है खत्म करता हूं। आज कैसे झूठ की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, गंदगी में पड़े हुए, गलत बातें, ज्यादा मजा आता है, बोलते ना, बड़ा चढ़ा के बोलेगा तो ज्यादा मजा आता है। एक हस्बैंड एंड वाइफ जो है रेस्टोरेंट गए थे, ऐसे ही छोटा सा डेट था या मिलने, ऐसे ही छोटा सा डिनर करने गए, और जो है अब जाते हैं तो औरतों को तारीफ बहुत पसंद आता है, तो वो पति जो है उसके वाइफ का बहुत तारीफ करने लगता है। तारीफ में पता है वो क्या कहता है? वो कहता है आप बहुत सुंदर हो, आपका हाइट जो है 4.7 है, आपका वेट जो है 63 है, और आप जो है खाना अच्छा बनाते हैं, और आप जो है ये टाइम पे ये काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सही में तारीफ है? अच्छा लगेगा उनको? नहीं, किसी को भी ये तारीफ अच्छा नहीं लगेगा। बट आप ध्यान दो, वो फैक्चुअल बात कर रहा है, उसका हाइट, उसका वेट, उसका काम, वो फैक्ट जो है करेगा। इसके बदले में अगर वो पति कहता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा, तू परियों के जैसा खूबसूरत है, तेरे रेशमी बाल जो है जैसे हम लोग हाथ लगाते हैं तो बहुत एकदम सिल्क जैसा फील होता है। ये सब पोयम, पोएटिक बात हम लोग जब करेंगे बढ़ा चढ़ा के, ऑब्वियसली तारीफ पसंद आ जाता है, ऑब्वियसली वो बीवी खुश हो जाएगी। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि हम लोग फैक्ट्स, जो सच्चाई है, उसको छोड़कर हम लोग अलग ही बातों में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी का तारीफ मत करो, जस्ट एन एग्जाम्पल है। आप पोयम लिख सकते हैं, शायरी में तारीफ कर सकते हैं, बट बाइबल से आप शायरी नहीं कर सकते, बाइबल से आप पोयम नहीं कर। दिस इज द प्रैक्टिकल टीचिंग्स दैट बाइबल गिव्स। अगर अंदर से हमको चिंता मुक्त होना है तो ये सच्चाई को जानना है, पोयम को नहीं। कोई शायरी यीशु मसीह के साथ नहीं चलता ना। बीवी को बोलो, पति को बोलो शायरी, लेकिन यीशु मसीह के साथ सिर्फ सच्चाई चलता है। हर एक झूठ से मुक्त होना जरूरी है। सच्चाई कहां है? वो सवाल जब मुझे पूछा गया था, सच्चाई आपके अंदर है, सच्चाई मेरे अंदर है, मैं सच्चाई से जीना चाहिए। पूरा समाज क्या कर रहा है इसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं, क्या मैं सही हूं? यस, दैट्स व्हाट विल सेट यू फ्री। और जब आप ये जानेंगे, वो 5 स्टेप्स यीशु मसीह के करीब हम आते जाएंगे। दिस इज द ट्रूथ, यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आप सत्य को जानो, आपको सत्य जो है वो निश्चिंतता आपको देगा। कोई टेंशन आपको जो है परेशान नहीं करेगा। टेंशन आएगा बट वो परेशान नहीं करेगा, वो आपको दबाएगा नहीं,
इसलिए वचन कहता है ना, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो बोझ को लेकर उसके पास जाने के लिए ये स्टेप्स है मेरे भाई, ये स्टेप्स है परमेश्वर के लोगों। फर्स्ट थिंग ओबे, फर्स्ट थिंग बिलीव इन जीसस। देखो नॉन क्रिश्चियंस को अभी तक पहुंचा ही नहीं है, वो तो सिर्फ सुन के आ जाते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं, फिर भी हम लोग बहुत दूर है। उसके बाद ओबे, सिर्फ जानना नहीं है, उसकी बातों को मानना है बाइबल पढ़ के। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ बोलेगा तो नहीं आया उसको बोलो, प्रार्थना कर, नहीं आया मेरे को नहीं जमेगा, या बड़ा बड़ा पोस्ट में, लेकिन ये सब नहीं आ रहा है। व्हाई? ये सीखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू ओबे जीसस। देन थर्ड स्टेप इज टू बिकम डिसाइपल्स। यीशु मसीह का शिष्य बनना बहुत जरूरी, क्लोज सर्कल में जाना जरूरी है। उसके बाद then you will know the truth, then you will know the Jesus, because Jesus is the truth. यीशु मसीह ही सच्चाई है। यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का ये प्रीचिंग, वो हम लोग चर्च में जाकर आशीर्वादित नहीं हो सकते हैं जितना यीशु मसीह से। जब वो सच्चाई से हम लोग जानते हैं यीशु मसीह को, वो करीब से, वाओ, हर एक चिंताओं से हमको मुक्त कर देगा। एंड वी विल एंजॉय द रियल फ्रीडम। दिस इज द जर्नी टुवर्ड्स फ्रीडम। हमारे अंदर की आजादी का जो रास्ता है ये है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आए और आप अपने जीवन से हर एक चिंता मुक्त हो जाए। अगर आप ये वचन को फॉलो करेंगे, सच में परमेश्वर आपको हर एक चिंता से जो है मुक्त कर देगा। बिकॉज वो खुद, ये वचन कोई शिष्य नहीं कहता, ये यीशु मसीह खुद कहता है। यू विल बिकम डिसाइपल्स, देन यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आप जब शिष्य बनते हैं, आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजाद कर देगा। हर एक पाप से, हर एक चिंता से, हर एक टेंशन से आप दूर हो जाओगे। आपके अंदर की आजादी आपको बुला रहा है। अगर आपको पाना है तो जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स। यीशु मसीह के पास पहुंचो। जितना आप पहुंचोगे उतना कम है, पहुंचते रहना अति आवश्यक है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे। आमीन।
ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ। और कोई अपना जन्मदिन या अपने वेडिंग एनिवर्सरी को इस हफ्ते मना रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने स्थानों पर जहां पर आप है, आप अगर खड़े रहेंगे या घुटने पे आएंगे तो आप सभी के लिए जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये अंतिम प्रार्थना होगा, इस ऑफरिंग के लिए भी जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जो है प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन से जो है इस आराधना को समाप्त करेंगे। ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನದಿಂದ आराधने मुगिसलपड़ुವುದು। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, अनाउंसमेंट है, जैसे आइया हर संडे को करते हैं हम लोग सारे अनाउंसमेंट्स को हम लोग याद रखें और जो लोग ऑफरिंग को दे सकते हैं अपने घरों में अपने जो है डब्बे में जो है जमा करें और जितना हो सकते है चर्च में लाके जो है ट्रेजरर को या जहां पे आपका जो अवेलेबिलिटी है वो आप पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और जिसका सैलरी चालू है वो अपना मंथली ऑफरिंग को जो है रुकाए ना, क्योंकि बाद में आपको बहुत बोझ हो जाएगा कि इतने महीनों का मैंने भरा नहीं है। जिसके पास है एटलीस्ट वो लोग जो है चर्च को दे, ताकि चर्च का भी मैनेजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी रीति से चल सके। ये हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चर्च से भी करता हूं इसलिए मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूं। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं सभी से निवेदन करूंगा, जैसे हम सभी लोग जानते हैं जो हमारे चर्च के एल्डर है मिस्टर कुबेर सैमुअल, उनके लिए जो है उनके परिवार के लिए जो है हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने जो है उन्हें अपने आगोश में बुलाया है, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देना है और साथ ही साथ जो है उनका फैमिली जो हॉस्पिटल में है, जो डर के माहौल में है या जो आंसुओं के माहौल में है, परमेश्वर उनके जीवन में वो धैर्य दे। हम जो है प्रार्थना करने के लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अय्या के लिए भी और अम्मा के लिए भी जो है प्रार्थना आप लोग करें। क्यों ना हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಘನ ಮಾನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿದೆ। ಅದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನಾಮ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಆ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳವಾಗಿದೆ। ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಕಳೆದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳವಾಗಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೂತನವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಇಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು,
30, 60, 100ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಬೇರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಆಲಯಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ. ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವ ದೇವರಾಗಿರು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ದೇವರಾಗಿರು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದುಃಖದ ಸಾಗರವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಅಯ್ಯ ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಅಂಬರ್ನಾಥ್ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ಜನರು ಸ್ವಾಮಿ, ಅನ್ಯ ಜನರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೇವರನ್ನಾಗಿರು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ಸಭೆ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಜನರು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರೆಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನಾಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಭು ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೈಂಗೆ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡಿನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವೇ ನಿನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ. Praise the Lord.